Hello students, I am Lalitha Rajan. Today again I am showing the remaining properties of inverse trigonometric functions. अभी मैं आपको टेबल दिखाएंगे. Now we are starting the important questions related to inverse trigonometric functions. Prove that 9 pi by 8 minus 9 upon 4 sin inverse 1 by 3 equal to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3. So first we can take it as LHS equal to 9 pi by 8 minus 9 upon 4 sin inverse 1 by 3. 9 pi by 8 and 9 by 4. We can take 9 by 4 common, then pi by 2 minus sin inverse 1 by 3 equal to 9 upon 4. Pi by 2 minus sin inverse 1 by 3 property is there, that is cos inverse 1 by 3. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. So pi by 2 minus sin inverse x है cos inverse 1 by 3 होगा. 9 by 4 cos inverse 1 by 3. बट हमको यहाँ पर 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon 3 चाहिए, तो cos inverse 1 by 3 को हम लोग का फिर से cos inverse 1 by 3 equal to x, cos x equal to 1 by 3, right angle triangle, this is x, this is 1, 3, 3 square 9, 1 square 1, 9 minus 1, 8, 8 is 2 root 2. So 9 upon 4 cos inverse 1 by 3, here sin x is 2 root 2 upon 3, then sin inverse 2 root 2 upon 3 equal to RHS. Therefore LHS equal to RHS. Next question we are doing, prove that tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. You can take LHS. Tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो आपके पास प्रॉपर्टी है tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला, tan inverse x plus tan inverse y. फॉर्मूला इज tan inverse x plus y upon 1 minus x. तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो tan inverse x plus 2x upon 1 minus x square upon 1 minus x into 2x upon 1 minus x square. तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेगा तो आंसर आ जाएगा. तो tan inverse you can take LCM, then x minus x cube plus 2x upon 1 minus x square. यहाँ पर LCM 1 minus x square minus 2x square upon 1 minus x square. तो दोनों डिनोमिनेटर कैंसल, तो रिमाइनिंग tan inverse x plus 2x 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. This is equal to RHS. ये है सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन डू, प्रूव दैट cos of tan inverse x tan inverse sin cot inverse x equal to square root of 1 plus x square upon 2 plus x square. How to prove? देखो फर्स्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पर cot inverse x, सबसे अंदर कौन सा है वो ले लेंगे. तो cot inverse x equal to, you can take it as equal to y, we are substituting y, then cot y equal to x equal to cot y. cot y equal to x, हमको इसको कन्वर्ट करना है साइन में, तो x equal to cot y means x upon 1, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, तो ये y दे दिया. cot y means बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस x परपेंडिकुलर 1. तो हम लोग को इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे. हाइपोटेन्यूज इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसी से हम लोग कॉट इनवर्स को कन्वर्जन करके साइन में करेगा, तो साइन y इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये पूरा हम लोग इसी की जगह, ये हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया y,
तो उसी में पुट करने जा रहे हैं। तो LHS इक्वल टू कॉस tan इनवर्स साइन y की जगह पर हम लोग साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी साइन ऑफ साइन इनवर्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स को फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर से पुट करेगा, पुट tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू z पुट कर लिया, tan इनवर्स को उधर लेके आया, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan z। तो फिर से हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसका जो वैल्यू है tan z, ये एंगल z दे दिया, इसका tan का 1 परपेंडिकुलर और ये बेस 1 प्लस एक्स अंडर रूट। तो इसी से हम लोग थर्ड साइड फाइंड करेगा। थर्ड साइड मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी अंडर रूट में आएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थर्ड साइड 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग अभी पुट करेंगे फिर से इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पर tan z इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमको कॉस को कॉस इनवर्स में चाहिए, तो कॉस इनवर्स cos z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। तो cos ऑफ cos इनवर्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू RHS। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सॉल्व फॉर x cos of tan inverse x equal to sin cot inverse 3/4। ये कैसे करेगा? solve for x means we have to find the value of x। तो सबसे पहले हम पूरा टर्म ले लेंगे cos tan inverse x equal to sin cot inverse 3/4। ये cot inverse 3/4 को हमको sin inverse में कन्वर्शन करना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल cot इनवर्स 3/4 को x ये दे दिया और y दे दिया, x की जगह y दे दो। cot इनवर्स y 3/4 है तो 3 और 4, इससे थर्ड साइड फाइंड करेगा। 4 स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। तो इसी से हमको साइन इनवर्स 4/5, हमको अभी साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये है कॉस ऑफ tan इनवर्स x, तो इसी में से ये कॉस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स कैंसिल करके 4/5। ये आपको ये देखना है ये 4/5 लिमिट के अंदर आ रहे हैं क्या? तो लिमिट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इसका लिमिट है -1 to +1, तो उसी के अंदर आ रहे हैं इक्वल टू। तो tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस को हम उधर ले जाएगा, तो कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स 4/5 इसको हमको tan में कन्वर्शन करेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। अगेन वी आर मेकिंग वन मोर ट्रायंगल। तो कॉस इनवर्स इसको हमने z दे दिया 4 और ये 5। कॉस z इक्वल टू 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस दे दिया। थर्ड साइड हमको फाइंड करना है 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसको cos को चेंज tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x को हम लोग चेंज करेंगे tan इनवर्स 3/4। तो दोनों साइड का tan इनवर्स कैंसिल, therefore x इक्वल टू 3/4। ये होगा आपका। We can continue the question. Prove that tan inverse square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x upon square root of 1 plus x plus square root of 1 minus x equal to pi/4 minus half cos inverse x. We have to prove. Here the only the thing is that here the limit is given -1/√2 less than or equal to x less than or equal to 1. ये लिमिट कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो बता रहे हैं।
तो जो भी है 1 प्लस एक्स की जो कंडीशन आएगा, हम लोग इसमें यहां से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। हम x के लिए कॉस थीटा पुट करेंगे। जब x कॉस थीटा है तो ये लिमिट में कैसे अप्लाई हो जाएगा, सबसे पहले वो करेंगे -1/√2 लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। x की जगह पर कॉस थीटा पुट कर लिया, माइनस कॉस π/4 1/√2 कॉस 45 डिग्री लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस माइनस कॉस π/4 मीन्स कॉस इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन में कॉस π माइनस π/4 लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू कॉस 0। So pi minus π/4 means it will be coming as cos 3π/4. Cos 3π/4 less than or equal to cos theta less than or equal to cos 0. ये आ गया। और ये लिमिट में हम लोग इसको cos को चेंज करेगा तो 3π/4 लेस देन 3π/4 0 ऐसे नहीं लिख सकते। cos की कंडीशन में हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑपोजिट ऑर्डर मीन्स उसकी जो एंगल्स है, एंगल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 3π/4। ये एंगल आ जाएगा। बट हम लोग जब इसमें cos थीटा पुट करेगा तो फॉर्मूले में बन जाएगा θ/2। θ/2 है तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय θ/2 0 लेस देन और इक्वल टू θ/2 लेस देन और इक्वल टू 3π/8। हमने सबको 2 से डिवाइड कर लिया तो 0 और 3π/8 और ये 3π/8 मतलब ये दोनों हम लोगों का कितना 3π/4 उसके उससे भी छोटा हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उसके हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन में डाल देंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पूरा लिमिट हो गया। अभी हम LHS से स्टार्ट करेगा। LHS इक्वल टू tan इनवर्स, हम लोग ये पुट कर रहे हैं x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें मैं फॉर्मूला बता रहा है आपको 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्मूले को मैंने सेपरेट कर लिया। अब इसमें अप्लाई करेगा तो इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर θ/2 मीन्स √2 cos θ/2। ये cos θ/2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा। बट हमारे जो कंडीशन में देखो θ/2 मतलब 0 to 3π/8 मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो cos हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। तो हम लोग ले लेंगे cos θ/2 माइनस इसको sin θ/2। ये भी साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो अपॉन cos θ/2 प्लस sin θ/2। ये कंडीशन आ जाएगा। अभी ये वाले कंडीशन से हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos θ/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos θ/2। ईच टर्म को हम cos θ/2 डिवाइड करेगा तो tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, ये माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2। ये 1 माइनस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2। ये किसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan। इट इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan θ/2। tan इनवर्स tan π/4 माइनस θ/2 इसका भी tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, वो भी इस लिमिट के अंदर आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू π/4 माइनस θ/2। अभी π/4 माइनस θ/2 हमने x इक्वल टू cos थीटा लिखा, उधर से थीटा निकालेंगे। थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। तो वो हम लोग इधर पुट करेगा इक्वल टू π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। ये हो जाएगा RHS। दिस इज आवर आंसर। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क। और यहां पर आपको क्लियर कंप्लीट हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको सॉल्व करके दे देंगे।
और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसको लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है आप और नेक्स्ट वीडियो में आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। ओके, थैंक यू।